Video should be on. Draw for the next sum. Off videos will be out. About some number 16, 1, 6, 16. 16th sum, 1, 6. Any doubt in the homework sums? Anyone any problem in the homework sum? Tell me. Homework sum time पे हुआ 20-25 minutes. Did you check the time? Timing was very important. Boards में इतना ही मिलेगा. Last time video should be on. Off videos I'm picking out one by one now. All the videos should be on. Dhruv, Shikha, Liya, Pavik, Dev, Suhani, Dhairya, Vaibhavi, Dushyant, now. See sum number 16. Sixteenth sum. From the following information of Thane Cricket Association. Okay. This is for Thane Cricket Association. Income and expenditure for the year ended. What is the current year? Can you check and tell me what is the current year? What is the current year? 7, 8. 7. Current year of the business is 7, 8. Okay. Receipt and payment has been given for the year 7, 8. So current year is 7, 8. Tournament expenses marked down. Tournament Sir, expenses. have you shared the screen? Yeah. Sir, I am not able to see. Screen is visible, all of you? Voice is clear, audio clear? Yes, sir.
Now, mark it down, sum number 16, 1616. Tournament expenses. Check whether you have any tournament fund or donation for tournament fund on the receipt side. है कुछ tournament fund या donation for tournament fund? Check. Nothing, right? Do you have it? Tournament fund जैसा कोई item दिख रहा है? नहीं है. So no tournament fund. In that case, your tournament expense will be normal expense. Okay. Subscription fee for tournament दिया हुआ on the receipt side. Subscription fee for tournament is not one time. It's a recurring receipt. हर साल मिलेगा. It's a regular revenue receipt and revenue expense. The tournament expenses are expenditure. Maintenance charges of ground are expense. Rates and insurance are expense. Telephone charges are expense. Printing and stationery is expense. General charges are also expense. Honorarium to secretary is expense. Fixed deposit in bank. What is fixed deposit? What is fixed deposit? Fixed deposits are assets. So fixed deposit is asset. Investments are also assets. Sports equipments are also assets. Payments into bank. What do you mean by payments into bank? बैंक बैलेंस बैंक बैलेंस. पेमेंट इनटू बैंक मतलब एंड में तुम्हारा जो कैश बचा था तुमने उठा के बैंक में डाल दिया. ये पेमेंट इनटू बैंक देख के कंफ्यूज नहीं होना. पेमेंट इनटू बैंक का मतलब बैंक बैलेंस होता है. वैसे ही रिसीट साइड का भी कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक या अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, दैट इज ऑल्सो बैंक बैलेंस बट ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि लास्ट ईयर इतना बैलेंस था तुमने बैंक में से निकाल के कैश में लाया है उतना. बेसिकली ओपनिंग ही है, कैश लिखो या बैंक लिखो. So payment into bank is always closing balance. Amount withdrawn from bank या cash withdrawn from bank, that's your opening balance. क्योंकि last year इतना balance था तभी आप इतना withdraw कर पाए. Is it clear? So don't get confused between payment into bank and amount withdrawn from bank. Payment into bank is closing balance. Amount withdrawn from bank या cash withdrawn from bank is opening balance. साल के beginning में इतना पैसा था और तुमने इतना निकाला, ऑलरेडी इतना बैलेंस था बैंक. मेंबर सब्सक्रिप्शन, वेर यू पुट मेंबर सब्सक्रिप्शन. मेंबर सब्सक्रिप्शन कहाँ पे जाएगा? मेंबर सब्सक्रिप्शन इनकम. इनकम. सब्सक्रिप्शन इज ऑलवेज इनकम. सब्सक्रिप्शन इज ऑलवेज इनकम. ओके. अभी इधर ईयर वाइज दिया है कि साथ में दिया है? व्हाट अबाउट सब्सक्रिप्शन? इज इट गिवन ईयर वाइज? साथ में. No, साथ में दिया मतलब all the adjustments you are supposed to do, plus minus everything you are supposed to do, सब बेलपूरी है, मिक्सचर है उधर. मेंबर्स एडमिशन फीस चेक करो. एडमिशन फीस का कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? एनी इन्फो अबाउट एडमिशन फीस? चेक कर लो इंफॉर्मेशन में, कुछ नहीं दिया है. So entire admission fees is income. Okay. एडमिशन फीस जनरली ऑल्सो इट इज इनकम ओनली. उसका कोई ऐसा टेंशन लेने वाला बात नहीं है. बाय चांस कभी कैपिटलाइज करने को बोला तो हम कैपिटलाइज करेंगे, अदरवाइज सिंपली इट इज इनकम. Miscellaneous receipts are also income. Hire of ground is also income. Subscription fee for tournaments are income. Cash withdrawn from bank, that's your opening balance. शुरुआत इतना बैलेंस था, ओके, तो आपने इतना विड्रॉ किया. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कंफ्यूज मत हो ना, नीचे दिया है तो कैसा ओपनिंग? नीचे मतलब कभी भी आप विड्रॉ कर रहे हो ना बैंक में से, विड्रॉ कैसे कर रहे हो? कैश कैसे आया ऑर्गेनाइजेशन में? बैंक में था लास्ट मंथ में, लास्ट ईयर में. So that is your opening bank balance. Okay, cash withdraw from bank 6,000 is opening balance. Remember that. Deposited in the bank is closing and withdrawn from bank is opening. Okay. Donation for instituting a prize. Donation for instituting a prize. Is it general donation or specific donation? Bolo. specific Specific. So where it should come? Liability. Liability. Donation for instituting a prize will under liability. To the additional information, assets on 1st April 2007. Now in the beginning we discussed that this is the current year is what? Current year is 7-8. 7-8 is the current year, right?
Now what have they given over here? Assets on 1st April 2007. What do you mean by 1st April 2007? Which date is that? 1st April 2007 means what? First date of the year. First date, that's your opening date, right? Opening date है मतलब कौन सा बैलेंस है वो सब करंट ईयर है कि लास्ट ईयर है, सो आई थिंक दे आर लास्ट ईयर का बैलेंस. ओके, तो स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट नहीं है, वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है. स्पोर्ट्स एंड इक्विपमेंट नहीं है, दैट इज ओनली स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है. तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर एसेट्स विच वेर देयर फ्रॉम लास्ट ईयर, यू ब्रिंग इट टू दिस ईयर. कैश एट बैंक, देखो 6,000 रुपया वापस मैंने अभी अभी डिस्कस किया था आपसे. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. व्हाट इज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक? दैट इज एस ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक. तो यही ओपनिंग बैलेंस रिपीट करके दिया हुआ है 6,000, वापस लिखने की जरूरत नहीं है. दैट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक. देन प्रीपेड इंश्योरेंस 200. which prepaid is that? Which prepaid is that? Current year Last year. prepaid or last year prepaid? Last year prepaid. What are the two effects of last year's prepaid expense? Last year asset and this year add to expense. Last year asset and this year add to expense because expense belong to this year. Payment आपने last year की थी, expense belong to this year. Subscription due to the association. Association मतलब हमारा ही organization. Subscription due to the association मतलब हमें मिलना बाकी है कि हमें देना बाकी है? मिलना बाकी है. Is it receivable or payable, guys? Receivable. Receivable. It is receivable of current year or last year? Last year. Last year receivable का दो effect क्या होता है? What are the two effects of last year's receivable? Last year asset and this year subscription में से minus. Correct. Last year Minus. asset and this year subscription में से minus. अच्छा, minus करना है कि नहीं करना है? अभी suppose to करना है. subtract करना है. Year wise दिया होता है तो हम नहीं करते, ठीक है? यहाँ पर तो definitely करना. S from subscription and last year asset. Coming to the liabilities on 1st April 07. 1st April 07 again last year. Printing and stationery 100. What do you mean by liability of printing and stationery? What does that mean? Outstanding. Outstanding printing. What about last year's outstanding printing and stationery? What are we supposed to do with that? Last year's outstanding printing, what are we supposed to do? Minus from assets. Minus from Expenses. expenses. Stationery. And second effect, Last year liability. last year liability. Honorarium to secretary outstanding. Last year outstanding है वापस. What are the two effects? Last year Yes, liability and minus from expense. Less from expense and last year liability. Last year liability and less from expense क्योंकि आपने ये साल पे किया है उसमें से हटा दो. Then you are furnished with the following further information. अब ये further information कौन से साल का होगा? Further information belongs to which year? This year. This Current year. current year क्योंकि last year का तो दे दिया है ऊपर. Subscription received for the year 8-9 are subscription received for the year 8-9 are rupees. अरे एक मिनट. Donation of 10,000 should be kept under a separate account. सबसे पहला है donation of 10,000 should be kept under a separate account. मतलब क्या, उसका हम लोग वैसे भी करने ही वाले थे सेपरेट अकाउंट लायबिलिटी में. दिख रहा है वो डोनेशन फॉर प्राइज. कभी भी कोई स्पेसिफिक नाम का डोनेशन आ जाए ना, डोनेशन फॉर प्राइज, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर प्लेग्राउंड, डोनेशन फॉर क्रिकेट, डोनेशन फॉर पार्टी, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, कोई पर्टिकुलर डोनेशन आ जाए मतलब वो एंडाउमेंट फंड जैसा हो गया. उसका पर्पस स्पेसिफिक है, वो हमेशा लायबिलिटी में ही जाने वाला, उधर कोई जगह नहीं है. नो टू थॉट्स अबाउट दैट. ओके, तो डोनेशंस वैसे भी हम लोग लायबिलिटी में डाल रहे थे, वही इंफॉर्मेशन दी गई है कि पुट योर डोनेशन अंडर अ सेपरेट अकाउंट. उसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 8-9 आर ₹1000. 8-9 मतलब विच ईयर? Next 8-9 year. मतलब नेक्स्ट ईयर का अभी आ गया है. नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी आ गया है. दैट इज प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर. व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, Liability and minus from current year subscription. liability and less from current year subscription. Is that clear? Current year subscription में से minus and liability. Minus करना है कि नहीं करना है? कोई कोई समय हम नहीं भी करते हैं. Are we supposed to subtract it? Sure.
Why are we going to subtract it? Because एक साथ दिया हुआ है, okay? Year wise नहीं है. Year wise होता है ना तो भी माइनस करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है? समझ में आ रहा है? ईयर वाइज दिया होता तो हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे तो टोटल दिया हुआ है तो हम डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट करेंगे. उसके बाद दिया है आगे while subscription outstanding as on 31st March 08 are 400. Which outstanding is that? Current year. Current year outstanding. क्या होगा current year outstanding subscription? Add to subscription and assets. Add to subscription and assets, not liabilities. Outstanding subscription is always asset, okay? Receivable है, मिलना बाकी है, add to income belongs to this year, so add to income and assets, okay? उसके बाद सबसे important conceptual point है, देखो, let's see who gets this answer. Investments are of the face value rupees 10,000 and were purchased on 1st October 2007. Interest thereon at the rate of 12% per annum has been accrued due. क्या मतलब होता है इसका? Outstanding interest. Okay, can you tell me the amount of outstanding interest? $12 months for 9550 and 6 months for the new purchase. 600. Wrong. 600. Yeah, Tatvesh. 600. It is outstanding. How come? Interest, of course. No? But investments are 9550, right? But sir, face value is 1,000, no? 10,000. 10,000. तो फेस वैल्यू का यूज क्या है? To find interest. Interest. To find interest. That's the only use of face value. Okay. 11th स्टैंडर्ड भी बताया था, if you remember. फेस वैल्यू बुक्स में कहीं पे भी रिकॉर्ड होता है कि नहीं होता है? Do you record face value anywhere in the books of accounts? No. That is the basic price at which the shares and the bonds have been issued by the company. Okay. वो बेसिक ब्रेकअप कभी भी कंपनी इश्यू के वक्त डिसाइड करता है. वो खाली आपका एक इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, जस्ट टू कैलकुलेट योर डिविडेंड और योर इंटरेस्ट और योर जो भी रिटर्न्स है ऑन दैट इन्वेस्टमेंट. वो फेस वैल्यू के कंपैरिजन में कैलकुलेट करके हम लोग देते हैं. बाकी फेस वैल्यू का कोई यूज नहीं है, याद रखना, ठीक है? तो बुक्स में कितना रिकॉर्ड करना है इन्वेस्टमेंट? तो 9550 जो खरीदा हुआ है वो 9550 एक ही है. ये कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट नहीं है 10,000 का, ठीक है? नया इन्वेस्टमेंट नहीं है 10,000 का, ये वही 9550 का इन्वेस्टमेंट है. वही 9550 ही रिकॉर्ड करना है. बुक 10,000 रुपीज को इग्नोर करने का, वो फेस वैल्यू है, जस्ट इग्नोर दैट. वो वैल्यू कहीं पे बुक में रिकॉर्ड होने वाला नहीं है. फिर यूज क्या हुआ? फेस वैल्यू का यूज क्या है? There is only one use of face value. It is used just for the purpose of calculating or dividend or interest. तो यहाँ पे अपने को face value दिया है. तो look at the screen. I'm showing you the working note for calculation of interest on investment. Look at the screen. Working note for calculation of interest on investment. Outstanding. अच्छा. Is this hidden adjustment or normal adjustment? Are we supposed to do calculate? Only normal. Why they have given us ना 6 महीने का 31st मार्च तक है और अक्टूबर 1st को खरीदा है, तो 6 महीने का it is receivable. Okay, तो 6 महीने का डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. कैसा करोगे? किस पे करोगे? 9550 की 10,000 किस पे करोगे? 10,000. ये सब में 10,000 पे करेंगे क्योंकि फेस वैल्यू दिया हुआ है. व्हाट इफ फेस वैल्यू नहीं दिया होता तो किस पे? 550. तो फिर 9550 पे करते. क्यों 9550 पे कर देते फिर? व्हाट यू माइट हैव अज्यूम्ड ओवर देयर? Face value is equal to market. एग्जैक्टली, फेस वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू. यू गॉट दैट? तो नॉर्मली हम हर एक सम में 9550 पे करते थे अभी तक, जो कॉलम वैल्यू होती थी. ओके, तो जरूरी नहीं है कि हर एक सम में फेस वैल्यू एंड बुक वैल्यू सेम हो. यहाँ पे अलग हो रही है. तो अगर आप फेस वैल्यू और वैल्यू जो रिकॉर्डेड वैल्यू है वो दोनों अलग अलग दिया है, तो इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे करना है कैलकुलेट. ओके,
इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे करना है। यहाँ पे देखो 10,000 पे 12% फॉर 6 मंथ। क्यों 6 मंथ? क्योंकि 1 अक्टूबर 6 महीना यूज किया इन्वेस्टमेंट, 6 महीने का 600 रुपया रिसीवेबल है। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ रिसीवेबल इंटरेस्ट? Add to interest and asset. एड टू इंटरेस्ट एंड एसेट। ये समझ में आ रहा है? अच्छा, ये 10,000 बुक्स में कहीं पे भी रिकॉर्ड करना है आपको? बताओ मुझे, विल यू रिकॉर्ड दिस 10,000 एनीवेयर इन द बुक्स? कहीं होगा ये 10,000 रिकॉर्ड? No. नहीं, नहीं होगा। फेस वैल्यू हो, फेस वैल्यू। रिकॉर्ड क्या करना है? 9550। ओके, अभी आपको रिलायंस के शेयर का एग्जांपल देता हूं। 1978-79 में जब रिलायंस आया था, तभी उसका शेयर का फेस वैल्यू वाज 10 रुपीज और इश्यू वाज एट पार। 8-9 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो 10 रुपीज का फेस वैल्यू का शेयर था। 10 रुपीज का फेस वैल्यू का शेयर है, 10 रुपए में इश्यू आ गया था। अभी रिलायंस के शेयर का भाव क्या चालू है? अभी रिलायंस के शेयर का प्राइस चल रहा है 2,300 रुपए का भाव चल रहा है। ओके, आप खरीदने जाओगे तो कितने में पड़ेगा? 2,300। आपके बुक्स में कितना दिखेगा? 2,300, दैट इज द बुक वैल्यू। लेकिन आज भी जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू करती है। डिविडेंड इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू। I'll just show it to you. You can see it on the screen. I've opened an app. This is the money control app. Can you see that? Is it there on the screen? Yes. इसमें हम लोग देखते हैं रिलायंस के शेयर को, या कोई भी शेयर उठा के देख लो आप, सबका वैसे ही मिलेगा। रिलायंस का मैं डालता हूँ यहाँ पे RIL, ये रहा रिलायंस। ये देखो, यहाँ पे आपको कहीं तो दिखेगा स्टैटिस्टिक्स के नीचे। देखो स्टैटिस्टिक्स के नीचे स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड, फिर मार्केट कैप और फिर डिविडेंड परसेंटेज। कैन यू गाइस सी दैट डिविडेंड परसेंटेज? हाउ मच दैट? 65%. Can you see that? Dividend percentage is 65%. 65% of what? 10 rupees. Face value. What is the face value? उसी के just एक लाइन छोड़ के नहीं दिया है। Face value is ₹10. Can you see that? So it means that Reliance 65% dividend declare करती है। इस साल इसने किया है 65% of 10 rupees, that comes to 6.5 rupees. 6.5 रुपए का डिविडेंड रिलायंस ने दिया है ये साल। इज दैट क्लियर? ये आपको कोई दूसरा शेयर उठा के देख लो आप, से लेट्स से फॉर एग्जांपल ये है मेकिंग है गैलेक्सी, शायद दिया है डिविडेंड नहीं, ये भी नहीं है डिविडेंड। बजाज, कोटक महिंद्रा ने दिया, कोटक, HDFC बैंक ले लो, चलो HDFC बैंक ने दिया हुआ है। कैन यू सी HDFC बैंक का शेयर प्राइस? इट इज 1057। सेम गोज फॉर बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड शेयर्स में करो बात एक ही, आप खरीदोगे वो प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। तो आपका प्राइस है 1057। अभी आप खरीद के लाओगे तो बुक वैल्यू दिखेगी 1057 की आप। लेकिन अगर आप नीचे चेक करो, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ दिस शेयर? फेस वैल्यू देखो कहीं तो नीचे स्टैटिस्टिक्स में नीचे मिलेगा आपको, थर्ड लास्ट लाइन। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर ओवर हियर? 1 rupee. 1 रुपी। रिलायंस के शेयर का 10 रुपी था फेस वैल्यू, इसका 1 रुपी। डज नॉट मैटर, कंपनी कैन डिसाइड एट द टाइम ऑफ इश्यू व्हाट शुड बी द फेस वैल्यू, और चेंज भी कर सकती है बीच में, कंसोलिडेट और स्प्लिट करके। तो 1 रुपी, 10 रुपी, 5 रुपी, 50,000, 100, योर चॉइस, यू कैन कीप एनी फेस वैल्यू। What is the dividend percentage? Can you check? 250%. It's 250%. Of what? 250% of face value. मतलब 1 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर पे 250%, मतलब 2.5 रुपी। तो HDFC बैंक had given 2.5 रुपी का डिविडेंड, 2.5 रुपए का पर शेयर डिविडेंड मिला था आपको। 1,000 रुपए के शेयर पे 2.5 रुपीज ऑफ डिविडेंड दिया था कंपनी। Is that clear? So this is how you calculate dividend value, but face value is never recorded anywhere in the books. You record your purchase price and your
सेल वैल्यू जो भी गया है बीच में प्रॉफिट और लॉस. इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो कीप दिस इन माइंड. तो हाँ, अगर फेस वैल्यू नहीं होता तो आप हर बार किस पे करते हो इंटरेस्ट या डिविडेंड कैलकुलेट? तो किस पे कर लेते हो आप? Book value. Book value. Because in that situation we assume face value equals book value. We assume कि face value equals book value. और कारण हम फेस वैल्यू पे ही रहे, बिकॉज डिविडेंड उसी पे होता है, इंटरेस्ट उसी पे होता है, हम खाली अज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, फेस वैल्यू इक्वल्स आपने 600 पहले नाम बोला. ना नहीं बोला मैंने, कोई और बोला. 9550 बोला, उसको ना बोला. someone told me 9550 पे 12% for 6 months, उसको मैंने ना बोला. 600 is right. सर Yes. सर कभी ऐसा हो सकता है कि फेस वैल्यू कम हो जाए, मतलब हाँ. 9550 बुक वैल्यू कम हो जाए. नहीं नहीं, अभी 10,000 है, 10,000 की जगह समझो 9,200 होता और बुक हाँ, वैल्यू तो 9200 पे करने का. अच्छा, जो फेस वैल्यू अभी तो मतलब बताया तुमको रिलायंस का एग्जाम्पल. कुछ ज्यादा रिलायंस कम का ज्यादा फेस फर्क वैल्यू नहीं. 10 रुपया है. नहीं, अभी तो बताया यार, दोनों शेयर का फेस वैल्यू देखा नहीं क्या? रिलायंस हाँ, का फेस वैल्यू 10 रुपया था और HDFC बैंक का 1 रुपया है. शेयर का भाव चल रहा है 1000 रुपया, तो फेस वैल्यू कम ही है ना. हाँ. कैलकुलेट तो फेस वैल्यू पे ही करना है. फिर 250% किस पे लिया? फेस वैल्यू पे ही लिया. फर्म ज्यादा कोई फर्क नहीं. हमेशा फेस वैल्यू दिया तो उस पे करो, नहीं दिया तो बुक वैल्यू पे करते हैं, नॉर्मली जैसे करते हैं. देन आगे बढ़ते हैं. Next one. This part is clear. Interest calculation. This 600 का 2 effects. What are the 2 effects of this 600? Outstanding interest का 2 effect क्या होगा बताओ? Add to income and Add to assets. income and assets. Assets में add to investment. Add to income, add to investment. Write off 50% of sports equipment. What is write off? 50% of sports equipment. Depreciation. Depreciation. Sports equipment are always asset. No two thoughts about that. Equipment, instruments are always asset. So depreciation is, so what are we supposed to do? Less from sports equipment and expenditure. Less from sports equipment and expenditure. Prepaid insurance amounts to 250. What are the 2 effects of prepaid insurance? Less from insurance and assets. Less from insurance and assets. Current year है कि last year है ये? Current year. Current. Current year prepaid ये वाला. And secretary is to be given a bonus of 500. म्हणजे काय? Is to be given a bonus मतलब outstanding. Which outstanding is that? Current year outstanding. Current year outstanding. What are we supposed to do? Add to expense and liability. Bonus. Add to expenses and liability. Add to expenses and liability. Is that सर clear? मतलब वो ऑनरोरियम वाला है, उसमें ऐड होगा. ऑनरेरियम, हाँ उसी में ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, उसी में. सेक्रेटरी का एक ही एक्सपेंस है ना ऑनरेरियम. बोनस है उसका, आउटस्टैंडिंग कुछ सैलरी है, सब अगर होता तो पेमेंट है, फीस है, कुछ भी सब एक ही सेक्रेटरी में ही करना है. सर अलग से दिखाते तो नहीं चलता? नॉट नेसेसरी. सर एक बिकॉज ही- ये दोनों सेम थोड़ी ना हुआ. हाँ बट सेक्रेटरी को ही देना है ना. तुम सैलरी का मैक्सिमम एक बाइफर्केशन दिखाते हो. जनरली तो सैलरी एक ही अकाउंट में क्लब होता है. बाई चांस 2 दे दिया, स्टाफ और सेक्रेटरी तो अलग अलग दिखाते हैं. उससे ज्यादा डिविजन्स करने की जरूरत नहीं. ओके, तो सेक्रेटरी अगर दिया है तो सब उसी में करते हैं. सिंपल एज दैट. नॉट सच अ बिग अमाउंट टू हैव अ डिफरेंट अमाउंट. डॉट्स दे देना. अभी मेरे को बताओ कितना डॉट्स आएगा इंश्योरेंस पे? How many dots on insurance? 1, 2, 3, 4. Oh, 2 dots. Last year prepaid, this year prepaid. How many dots on subscription? Very important item. 2, 3, 4, 1. 4. Mokshit is saying 4. Is it 4? 3. 3. 23. 3. सर ऑप्शन चालू है. बोलो.
3 3 3 4 2 डॉट्स नहीं पता चलेगा, एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे, 3 मार्क गया गुल। सबको ढूंढना है, 3 लोग खाली नहीं बैठे क्लास। 3 dots, 3 dots, okay, 3 dots, current year outstanding, last year outstanding, current year pre-receipt. Then stationery 1 dot, printing and stationery 1 dot, secretary how many dots? Honorarium पे कितना? How many dots for secretary? 1 1 dot. 1 2 2 dots. 2 dots. Last year outstanding है, current year outstanding bonus है, 2 dots. Secretary, honorarium to secretary 2 dots. Investment 1 dot. Investment 1 dot. Donation for prize 1 dot. Donation for prize 1 dot. That it. I'll repeat. Sports, अच्छा sports equipment बोला, sports equipment. How many dots on sports equipment? How many dots on 2. sports equipment? 2. Sure, 2. Yeah. Yes. Why 2 dots? Purchase and depreciation. There is no sale. Fixed asset पे 3 ही dots possible है, sale, purchase, depre. उसमें से sale नहीं है, खाली purchase और depre है, तो 2 dots, perfect. तो sports equipment 2 dots, subscription 3 dots, insurance 2, printing and stationery 1 dot, secretary 2 dots, interest तो है नहीं, investment 1 dot, investment 1 dot, and price donation पे 1 dot. Start करो, 7 मिनट पे जाओ. Is there any need to सर वो जो opening balance sheet? एक yes मिनट, opening balance sheet बनाना है कि नहीं? yes No. बनाना है. क्यों बनाने का है? Why are we supposed to make opening balance कैपिटल sheet? फंड नहीं दिया कैपिटल फंड नहीं दिया है, तो 31 मार्च 07 का भी बैलेंस शीट बनेगा. बोलो. सर इसका मार्क्स होएगा क्योंकि सिर्फ एक ही Yes. चीज फाइंड करने का है, क्योंकि दूसरा सब ले हाँ. लिया. क्या एक ही चीज? कैपिटल फंड ही है ना, मतलब हाँ, दूसरा but कुछ capital कुछ fund बनाने का as नहीं of- है. बनाने का पूछा नहीं है फेयर में, बट एज अ वर्किंग नोट यू विल हैव टू मेक इट. सर वो वर्किंग नोट बताओ ना इंटरेस्ट का. नॉर्मली तो है 6 महीने का PNR. सर 4 एडजस्टमेंट 4 किसी पे भी नहीं. सर वो जो बनाना है. एडमिशन फी था Opening- वो इनकम है कि उसमें जाएगा कैपिटल में क्या? एडमिशन फीस एडमिशन फीस इनकम, ऑलवेज इनकम. कुछ नहीं दिया तो ऑलवेज सर पर एडमिशन वो तो एक ही बार आता है ना एडमिशन पे. नहीं एडमिशन फीस अब है ना, अभी दोनों में एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस है ना, यू कैन पुट इट इन बोथ. एडमिशन फीस कैपिटलाइज भी कर सकते हो, इनकम में भी डाल सकते हो. ओके, कुछ नहीं दिया बट तो कुछ नहीं दिया है ना, तो 12th स्टैंडर्ड में दे आर फॉलोइंग इनकम, यू फॉलो इट, पुट इट अंडर इनकम. एक्चुअली एडमिशन फीस एंट्रेंस फीस एक ही होता है, यू शुड कैपिटलाइज इट. वन टाइम होता है, कैपिटलाइज करना होता है, बट इधर 12th स्टैंडर्ड में दे आर फॉलोइंग सिंस पास्ट. एंट्रेंस फीस भी वो लोग इनकम में डालता था, अभी ये साल चेंज किया है. एंट्रेंस फीस दे आर पुटिंग अंडर कैपिटलाइज. होपफुली नेक्स्ट ईयर दे रियलाइज अबाउट एडमिशन फीस. एडमिशन फीस फिलहाल यू पुट इट अंडर इनकम बिकॉज 12th स्टैंडर्ड दे आर फॉलोइंग दैट ओल्ड assumption ऑफ इनकम. ओके, रिकरिंग अज्यूम कर रहा है वो. कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक कैपिटल फंड में माइनस करेंगे ना. नहीं, अरे कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक इज ओपनिंग बैलेंस. स्टार्टिंग में तो बोला, नीचे दिया भी है, पढ़ो इंफॉर्मेशन में. लास्ट ईयर देयर वाज अ बैंक बैलेंस ऑफ 6000. वो ओपनिंग बैलेंस है. तुमने विड्रॉ कैसे किया? कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक की एंट्री किया, कैश टू बैंक, बैंक घटा कैश बढ़ा, तो वो कैसे हुआ? क्योंकि ऑलरेडी देयर वाज सम बैलेंस इन बैंक, यू आर जस्ट शफलिंग दैट बैलेंस टू कैश. So that's your opening bank balance, last year asset. And deposited in the bank मतलब जो रोकड़ा बचा था उसको बैंक में डाल दिया. Receipt payment is a summary ना of both cash and bank, दोनों है उसमें. So closing payment into bank is closing balance and withdrawn from bank is opening bank. Got it? एडमिशन फीस के बारे में कुछ नहीं दिया, पुट इट अंडर इनकम. ठीक है, एंट्रेंस फीस कुछ नहीं दिया तो कैपिटलाइज. आई विल गिव यू द लिस्ट आल्सो, क्या इनकम में डालना है, क्या कैपिटलाइज करना है, वो लिस्ट ध्यान से देख लेना है एक बार. और में ऐसा इश्यू कभी आएगा नहीं, अभी तक तो नहीं आया है कि
नहीं पता हो क्या कैपिटलाइज करना है क्या रेवेन्यू, they give you clear cut information, okay, what is to be capitalized, how much it is to be capitalized, percentage breakup is given, तो इश्यू आता नहीं है कभी, थियोरिटिकल assumption है, कभी बाय चांस जरूरत पड़े तो यूज करना है आपको ये। तो एडमिशन फीस कुछ नहीं दिया है, इनकम, एंट्रेंस फीस कुछ नहीं दिया है तो कैपिटलाइज, और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का है, वर्किंग नोट के फॉर्म में बनाना मार्क्स है उसका, ओके, दे एक्सपेक्ट यू टू मेक इट ओपनिंग बैलेंस शीट एज वेल, लास्ट ईयर तक नहीं था, ये साल से स्टार्ट किया है, दे वांट यू टू मेक ओपनिंग बैलेंस शीट, तो एज अ वर्किंग नोट अगर कैपिटल फंड मिसिंग है तो मेक इट, ओके। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आर एक्सपेंडिचर, tournament expense are expense, that is 1800. Maintenance charges of ground is expense, maintenance charges of ground is expense. Rates and insurance is expense, rates and insurance is expense. Telephone charges are expense, telephone Rates charges Provide करना है are, ना rates and insurance पे। Rates पे अच्छा हाँ, डॉट्स दो है ना, हाँ सॉरी, 2 dots, right, 2 dots on insurance. What are the 2 dots? Current year prepaid and last. What you will do of current year prepaid? Minus. Less. Current year prepaid less. ये 08 का है, and last year prepaid insurance you add. Last year prepaid insurance we add. Current year prepaid नीचे मिलेगा, that was 250, और last year prepaid ऊपर मिलेगा, that was 200. Okay, keep it in mind. You have telephone charges. Telephone charges are expense, no dot, no adjustment, 150 rupees. अरे प्रीपेड 0809 है ना, 0809 नहीं, अपना 78 का है प्रीपेड, 78 है ना करंट ईयर, हाँ ओके, तो 8 लिखा है, और 67 इज द लास्ट ईयर, तो 7 लिखा है, 2 ही साल है, करंट ईयर और लास्ट ईयर, करंट ईयर प्रीपेड लेस, लास्ट ईयर प्रीपेड एड. Then telephone charges are 150. Printing and stationery. So 2 printing and stationery is expense. Is there any dot? I think there was 1 dot, right? What was the dot on printing? What was the dot on print? Last year outstanding. Yeah, that was last year's outstanding printing. 100 rupees we are supposed to subtract. Less outstanding printing 07, 100 rupees. लास्ट ईयर पेएबल था, ये साल रोकड़ा दिया है 300, उसमें से ये 100 पड़ा हुआ है. We are removing that. We are showing in the outer column as 200. We have general charges. So 2 general charges, that's expense, 500 rupees. Honorarium to secretary, there are 2 dots on honorarium to secretary. Honorarium to secretary is 1300. एक तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम है, उसको लेस कर दो, लेस लास्ट ईयर्स ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 07 का लेस करो, एड आउटस्टैंडिंग बोनस टू सेक्रेटरी, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 08 का, ये ऐड कर दो. लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था, 100 rupees, that you subtract. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लास्ट लाइन पे दिया हुआ है 500, that you add. So outer column secretary का payable amount, actually incurred amount is 1700. Then what do we have? Fixed deposit with bank. Check, did you have any fixed deposit in the last year? Did you have any deposit in the last year?
कुछ नहीं था, right? So bring it to this year directly 6,000 current year purchase. Investments, were there any investments in the last year? Were there any investments in the last year? Check. Last year पे कोई investment था? कुछ नहीं था. ऊपर वाले डेटा में दिया हुआ है एसेट लायबिलिटी, तो कुछ नहीं था, तो खाली करंट ईयर का है 9550. देयर इज अ डॉट, रिसीवेबल है इंटरेस्ट, तो ऐड आउटस्टैंडिंग interest for 08. Current year outstanding is how much? We calculated that was 600 rupees. Face value पे किया है हमने calculate, क्या था आपको 10,150. 9550 plus 600 is 10,150. Sports equipment. See, there were sports equipment in the last year. तो कभी भी कोई भी फिक्स्ड एसेट दिखे तो शुरुआत लास्ट ईयर से करने का. Sports equipment in the last year were how much? 3,000. Sports equipment in the last year were 3,000. नीचे दिया हुआ है information में. Bring it to this year. Sports equipment. Bring it to this year. 3,000. Any fixed asset. Okay. राम कहानी हमेशा लास्ट ईयर से शुरू करनी है, लास्ट ईयर से करंट ईयर में लाना है, फिर सेल है तो माइनस करना है, परचेज है तो ऐड करना है. यहाँ पे है आपका करंट ईयर परचेज ऑफ इक्विपमेंट. current year purchase of equipment, current year purchase of equipment, that is what 2,000. So 3 plus 2 will make it 5. 3 plus 2 will make it 5, and then less depreciation दिया हुआ है 50%. 50% से उसको write off करना है, तो 2,500 से write off हो जाएगा, that is depre. कोई भी asset हो, treatment is same. Any fixed asset treatment is same. Last year, bring it to this year, and then sale, purchase, and then depre. Then we have member subscription, that is income. There are 3 dots on subscription. Subscription is 10,000 on the income side. First adjustment I'm doing is outstanding subscription of this year. वो add करना है 08 वाला. फिर less outstanding subscription of last year, वो less करना है, and pre-received subscription of this year, ये भी अपने को less करना. तो पहला outstanding of this year आपको नीचे मिलेगा सेकेंड लाइन पे 1,000 रुपीज. आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का ऊपर मिलेगा फर्स्ट पैरा के एंड पे सब्सक्रिप्शन ड्यू 600, ये लेस कर दो. और नीचे वापस सेकेंड लाइन पे मिलेगा 400 रुपीज नेक्स्ट ईयर का ब्याज, ये भी लेस कर दो. टोटल आई थिंक कितना आता है यहाँ पे, हमारा 1,000, 10,000. 600 is due, so subtract current year. अरे एक मिनट, अमाउंट ऊपर नीचे हो गया. This is not 1,000. Current year pre-received is 1,000, and current year outstanding is 400. Yeah, 16 or 412 or 8,800 आएगा outer column subscription. Check कर लो. 8,800 in the outer column subscription. Okay. Admission fees दोनों में जा सकता है. Better to be capitalized, but boards are following this assumption of income. So we are also following the same assumption. Admission fees income. Okay. Income में डाल लो 300 rupees. I'll give you a note for this. Admission fees. Miscellaneous receipts. Miscellaneous receipts are also income. Miscellaneous receipts are also income. 400 rupees. No dot. Hire of ground. That is also income. Hire of ground is also income. 1,000 rupees. Subscription for tournaments is also income. By subscription for tournament, that is 1,000. Cash drawn from bank. What is cash drawn from bank?
ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर का बैलेंस इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, नीचे भी देख लो. बैंक बैलेंस वाज ऑलरेडी 6000 इन द बिगिनिंग. ओके, दैट वाज लास्ट ईयर्स बैलेंस. एंड जो नीचे अपना क्लोजिंग में दिया हुआ है पेमेंट इनटू बैंक, दैट इज क्लोजिंग, वो करंट ईयर बैलेंस शीट में आएगा 7000. रह गया था एक आइटम, पेमेंट इनटू बैंक इज करंट ईयर क्लोजिंग बैलेंस, विड्रॉन फ्रॉम बैंक इज लास्ट ईयर्स बैलेंस. अभी इतना निकाला ओपनिंग बैलेंस. वी हैव डोनेशन फॉर इंस्टीट्यूटिंग अ प्राइस, स्पेसिफाइड डोनेशन है तो अलग से लायबिलिटी में. बैंक का अमाउंट क्या है? 7000 and 6000. करंट ईयर 7, लास्ट ईयर 6. विड्रॉन फ्रॉम बैंक है ना, वो ओपनिंग बैलेंस ही है. लास्ट ईयर 6000 था तभी विड्रॉ किया. तो डोनेशन फॉर इंस्टीट्यूटिंग प्राइस, दैट इज प्राइस डोनेशन, just one effect, that is liability 10,000. No सर second मतलब effect. जो एडजस्टमेंट दिया है उसका कोई मतलब ही नहीं था ना, कौन सा एडजस्टमेंट? ये डोनेशन वाला. नहीं, हम लोग कोई वैसे मतलब भी नहीं. करने ही हम वाले लोग थे. वैसे भी करने ही वाले थे. स्पेसिफाइड डोनेशन था, लायबिलिटी में डाल, खाली एडिशनल इंफॉर्मेशन, नो यूज, एक्स्ट्रा यूज कुछ. ओके, come to the adjustments again. Sports equipment were 3000 the last year, so we wrote it to last year, we brought it to this year, we added the purchase. कैश एट बैंक वापस मत लिख देना, हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है 6000. ये रहा कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर एसेट. प्रीपेड इंश्योरेंस का दो इफेक्ट, एक दिया हुआ है हमने, ऐड किया हुआ है लास्ट ईयर का प्रीपेड. सेकंड इफेक्ट भी दे दो, लास्ट ईयर एसेट. लास्ट ईयर एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस 200, लास्ट ईयर एसेट प्रीपेड इंश्योरेंस 200. सब्सक्रिप्शंस ड्यू टू द एसोसिएशन, ड्यू टू द एसोसिएशन होना मिलना बाकी था लास्ट ईयर का. One effect is less from subscription, that we have already given. Second effect लिख दो, last year asset outstanding subscription. Last year का कितना था receivable? 600. Was there any still in arrears? Still in arrears था ये सब में? No still in arrears. Last year का जितना मिलना बाकी था received पूरा माइनस कर दिया. Then current year outstanding, last year outstanding printing. One effect is less from printing, we have done that. Second effect is last year liability, outstanding printing is last year liability, that was 100 rupees. Similarly, honorarium to secretary, we have already done one effect, less from secretary. Second effect is outstanding last year liability, देना बाकी था last year का 100 रुपया. Then current year का information दिया था, 10,000 सेपरेट अकाउंट में डालना था. प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डोनेशन, वी हैव ऑलरेडी डन दैट. सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 8-9, मतलब प्री रिसीव्ड है, करंट या प्री रिसीव. वन इफेक्ट वी हैव गिवन, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन. सेकंड इफेक्ट दे दो अभी, करंट ईयर लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, करंट ईयर लायबिलिटी दैट इज 1000. सर हम लोग लायबिलिटी में प्री रिसीव्ड लिख सकते हैं. हाँ, चलो. एक ही है दोनों, प्री रिसीव्ड या रिसीव्ड इन एडवांस, इट इज वन एंड द सेम. And outstanding the 400. So last year, current year outstanding है ये. So one effect is add to income, and second effect is assets of current year outstanding subscription. Yes, Ayushi, you have doubt? Then what do we have next is investments were of the face value rupees 10,000. फेस वैल्यू 10,000 था, परचेज ऑन 1 अक्टूबर, 6 महीने का इंटरेस्ट रिसीवेबल था. इट इज ऑलरेडी डन, ऐड टू इन्वेस्टमेंट. सेकंड इफेक्ट बाकी है इनकम वाला, वो दे दो, बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 600 रुपया. फेस वैल्यू नहीं होता है तो बुक वैल्यू पे करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है फेस वैल्यू, सो डू इट ऑन फेस वैल्यू. राइट ऑफ 50% ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में 50% राइट ऑफ करना है आपको, दैट वाज डेप्रिसिएशन. वन इफेक्ट इज गिवन, लेस फ्रॉम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. सेकंड इफेक्ट इज एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, दैट वाज 1005 दे दो.
Then prepaid insurance 250, current year prepaid है, one effect is given, less from insurance, ये देखो हो चुका है. Second effect बाकी था, अभी दे दो, current year asset, prepaid insurance 250, and secretary is to be given a bonus of 500. That was current year outstanding bonus. One effect we have already done, add to secretary as bonus. Second effect बाकी है, तो अभी दे दो, outstanding bonus to secretary. Current year liability 5. The problem is over. You can tell me the total of closing balance sheet. 9,000. डोनेशन किधर लिखा है? Liability. ये क्या? और दो डोनेशन है ना? एक ही डोनेशन है 10,000 रुपए का. वो कैश विड्रॉन वाला नहीं समझा आपने, क्यों लास्ट के बैलेंस शीट में डाला वो? कैश विड्रॉन का मतलब क्या है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक में क्या एंट्री करते हो बोलो? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है ना, तो कैश टू बैंक. बराबर है. तो कैश बैलेंस बढ़ा और बैंक बैलेंस कम हुआ. करेक्ट. अभी वो बैंक बैलेंस कम कैसे हुआ? ऑलरेडी कुछ बैलेंस था ना, इसलिए कम हुआ ना. So that 6,000 was already there in the last year. अभी कैश विड्रॉ करने से हुआ क्या? कैश में खाली पैसा बढ़ा और बैंक से घटा है. रिसीट पेमेंट तो कैश और बैंक का समरी है, तो ओवरऑल रिसीट पेमेंट का बैलेंस अनअफेक्टेड रहेगा. टोटल देखोगे अगर कैश और बैंक मिला के, शुरुआत में बैंक बैलेंस वो 6,000, कैश 0. फिर इन बिटवीन ऑफ द ईयर आपने कैश निकाला बैंक, इसलिए उधर रिसीट में दिख रहा है तुमको कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. एक्चुअली वो बैलेंस ही है. क्यों? क्योंकि बैंक को घटाया और कैश को बढ़ाया, तो वो 6,000 उधर ही वैसे ही दिख रहा है. तुम ओपनिंग बैलेंस लिखो 6,000 या फिर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक लिखो, बात एक ही है. लास्ट लाइन पे देखो क्या दिया, पेमेंट इनटू बैंक. पेमेंट इनटू बैंक मतलब कैश बैंक में डाल दिया. तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? बेसिकली कैश रख ही नहीं रहा है बुक्स में. ये क्या कर रहा है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर जब भी शुरू हुआ ऑर्गेनाइजेशन, कैश 0 था, बैंक में से 6,000 निकाला, बैंक बैलेंस था 6,000, उसमें से 6,000 निकाला, कैश लाया, फिर सब रिसीट पेमेंट कैश में किया, फिर अंत में जो कैश बचा था ना उसको वापस बैंक में डाल दिया, बैंक टू कैश. तो आपका जो बैंक टू कैश करो या कैश टू बैंक करो, ओवरऑल रिसीट पेमेंट का बैलेंस विल बी सेम ओनली ना, एट 6,000 and 7,000. यू गेटिंग दैट? शुरुआत में आपने बैंक से निकाला, मतलब बैंक में ऑलरेडी था इतना बैलेंस, तभी निकाल पाए. एंड में आपने बैंक में डाल दिया, तो वो 7,000 कैश बचा हुआ आपने बैंक में इंट्रोड्यूस किया. तो अभी कैश 0 हो गया, एंड में कैश 0 हो गया और बैंक बैलेंस 7 आ गया. अब ये 7 इस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, वापस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? ये 7 बैंक में से निकालेगा, तो वापस बैंक में से और कैश में 7 बढ़ जाएगा. फिर रोकड़ा रिसीव करेगा, रोकड़ा पे करेगा, रोकड़ा रिसीव करेगा, रोकड़ा, एंड में जो कैश बचेगा उसको वापस बैंक में डाल देगा. दिस इज हाउ इट इज वर्क. टोटल बैलेंस इज सेम ओनली, कैश बिकम 0 at the end, it goes into bank. Beginning में bank becomes 0, it goes into cash. But receipt payment is a summary of both cash and bank. You see it together, that is the only opening balance you have. What is there in bank? So donation should be kept in a separate account, वो समझाओ ना. Donation should be kept in a separate account बोला ना अभी. Separate account मतलब पर्पस स्पेसिफिक है ना, हम लोग ने डिस्कस करते वक्त ही किया था, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, तो हर साल नहीं आएगा लायबिलिटी में डालने का. स्पेसिफिक डोनेशन, एंडाउमेंट फंड. सेपरेट अकाउंट का मीनिंग वही है कि शो इट अंडर लायबिलिटी, डोंट शो इट अंडर इनकम, शो इट अंडर लायबिलिटी. और सर वो नहीं भी दिया होता इन्फॉर्मेशन तो भी सेम करते थे. और सर कैश ड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगर वो अमाउंट और पीछे का जो कैश एट बैंक अमाउंट वो टैली नहीं होता, तो वो ओपनिंग बैलेंस नहीं होता ना. हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ओपनिंग में देगा ना वो लोग एक्स्ट्रा बैंक बैलेंस. रिसीट पेमेंट दिया है ना तुमको ऊपर, तो दे शुड प्रोवाइड विथ एक्स्ट्रा बैलेंस. ऐसा कुछ है तो, है ना, तो कुछ दिया नहीं. रिसीट पेमेंट ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होना ही चाहिए तुम्हारे पास, अवेलेबल होगा ही, ऊपर दिख ही जाएगा. बोलो अभी कितना आ रहा है ये टोटल ओपनिंग बैलेंस शीट? 9,800 माइनस 200, 9,600. और टोटल ऑफ
14,100. 14,100. टोटल हाँ सरप्लस 5,200. एक सेकेंड. करंट ईयर का ओपनिंग कैपिटल फंड इज 9,600. टोटल कितना 14,100. 14,100. 14,100 और सरप्लस 5,200. 5,200 का सरप्लस. ओके एंड एड इट 14,800. 14,800 and tally on 26,300. 26. Okay 26,300. चेक कर लो. Sir, that outstanding interest on investment का working दिखाने का main somewhere. हाँ कैलकुलेशन का जितना दिखाओगे ना, ऑल दीज थिंग्स हेल्प यू टू गेट फुल मार्क्स. ये तो बैलेंस शीट का तो एक्चुअल मार्क्स है ओपनिंग. बाकी एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस एंड ऑल whenever you presented all these are part of it. Sorry. Then come to problem number 19. 19th नहीं किया ना हमने, ये हो चुका है. 19th हो चुका है. 19th we have already done. Come to 17th problem. Problem number 17. Come to problem number 17. Problem number 17. देख के बताओ. Are we supposed to make any opening balance sheet in the sum? बोलो. 17 sum, books of credit club. Are we supposed to make opening balance sheet? Check. Yes. Yes. Definitely yes. Okay. Capital fund is missing. Note लिख लो previous sum में. Just write a note. In the absence of any information, we assume that admission fees is a revenue receipt. In the absence of any information, we assume that admission fees is a revenue receipt, hence credited to income and expenditure account. In the absence of any information, we assume that admission fees is a revenue receipt, hence credited to income and expenditure account. Okay. Practically कभी issue नहीं आता है क्योंकि आपको clear cut पता होता है which incomes you are going to get every year, which are non-recurring ones. Practically this is not an issue. Theoretically ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. Credit club. In the books of a credit club, start with payments, crockery purchase. बैलेंस शीट नहीं करने का ना कुछ. Only income and expenditure ही बोला है. 17 sum में ना. But still you make it both. दोनों balance sheet करो. Make both balance sheet for practice. एक बार नोट वापस रिपीट करो ना. In the absence of any information, we assume that admission fees is a revenue receipt, hence credited to income and expenditure account. Question में खाली income expenditure पूछा है, दोनों बनाने को बोल रहा हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए. Make both the balance sheet also. Okay. एग्जाम में कभी ऐसा सम नहीं आएगा. आज तक कभी नहीं पूछा है कि खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर आए. ये आपको थोड़ा बहुत एक टेक्स्ट बुक में और एक बार शीट में डाला हुआ है. शीट में तो मैं सब कुछ ही करवाता हूँ. टेक्स्ट बुक में एक सम था जहाँ पे लिस्ट ऑफ एसेट लायबिलिटी नहीं दिया था, तो ठीक है आप बना दो खाली इनकम. बट हमेशा याद रखना एग्जाम में फुल फ्लेजेड सम ही आएगा. सिंगल बैलेंस शीट और डबल बैलेंस शीट, या सिंगल या डबल बैलेंस शीट. वो जो नोट है ना आपने बताया, वो हम लोग
मेन सब में इंफॉर्मेशन है खाली। ये आपको अभी तक जरूरत पड़ा ही नहीं है, मैंने बोला ना बोर्ड्स में कभी ये नोट लिखने का। अच्छा, पर अगर हुआ तो हमको लिखना पड़ेगा हुआ ना? तो लिखने का, यस, हुआ तो अजम्पशन लिखना पड़ेगा। अगर अज्यूम करने की बारी आई तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, जैसे डोनेशन के बारे में नहीं दिया है तो इनकम में डाला, एडमिशन फीस कुछ नहीं दिया है इनकम में डाला, ग्रांट कुछ नहीं डाला है दिया है इनकम में डाला, इसका नोट लिखना पड़ेगा। तो क्रॉकरी परचेजेस, पेमेंट साइड पे क्रॉकरी परचेजेस, व्हाट आर क्रॉकरी परचेजेस? बोलो। एसेट्स, एक्सपेंस, they should have been expense, right? They should have been expense. Crockeries are expense actually, but if you check the sum properly sum check करो क्या दिया हुआ है। Sale of crockery. On the receipt side, the last item you have is sale of crockery. Can you see that sale of crockery? Sale of crockery का मतलब क्या? क्रॉकरी एसेट है। क्रॉकरी एसेट। सिर्फ क्रॉकरी का मतलब होता है क्रॉकरी एसेट है, एसेट का ही सेल हो सकता है। तो परचेज ऑफ क्रॉकरी क्या करना है? एक्सपेंस की एसेट, एसेट में ऐड वो परचेज है, नीचे सेल दिया हुआ है। ओके, अच्छा जो सेल है वो क्या इसी में से रहेगा 265 में से? नो, एनी सेल दैट हैपेंस इन द करंट ईयर is assumed to come from last Last year. year. The asset is assumed to come from last year and then we sell it in the current year. तो भले ही लास्ट ईयर में क्रॉकरी का कोई इन्फो नहीं है, स्टिल वी हैड क्रॉकरी हाउ मच? 200 या 120? 120. Why 120? बुक वैल्यू कितने का था? 120 का था। ओके, 200 क्या है? सेल वैल्यू है। Record sale value anywhere? No. Circle that. Instead you subtract book value from the asset and 80 rupees का profit that goes to your income. Sale value cash account में ही होता है record, वो हो चुका है। अगर उन लोग ने बोला कि सेल ऑफ क्रॉकरी और डेट दिया कि 1 अक्टूबर 2007, तो फिर हम लोग ओल्ड अज्यूम करेंगे कि न्यू वाला? Still it's better if you assume it is coming from last year. 6 महीने में भी खरीदना बेचना, करंट ईयर में परचेज सेल बड़ा वियर्ड assumption। स्पेसिफाई करके दिया है कि इट इज द सेम क्रॉकरी परचेज इन द करंट ईयर, सोल्ड इन द करंट ईयर, तो फिर ले लेना। कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, मतलब जो सोल्ड है वो सब लास्ट ईयर से है। ओके, तो करंट ईयर में 6 महीने बाद हो कि सेम डे हो कि 8 महीने बाद, सेम साल में कोई एसेट खरीद के बेचना इज अ वेग assumption। Maintenance, expense, match expenses are expense, salaries are also expense, conveyance is also expense, upkeeping of lawn is also expense, postage stamps also expense, purchase of cricket goods, what are purchase of cricket goods? अच्छा, नीचे करेक्शन करना है, स्टॉक ऑफ क्रिकेट गुड्स है, वो स्टॉक ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट नहीं है, स्टॉक ऑफ क्रिकेट गुड्स है, स्टॉक ऑफ क्रिकेट गुड्स। तो बोलो अभी क्या हो गया ये? परचेज ऑफ क्रिकेट गुड्स, स्टॉक दिया है ना, स्टॉक किस पे होता है? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एक्सपेंस पे होता है। तो परचेज ऑफ क्रिकेट गुड्स इज एक्सपेंस। स्टॉक्स दिया है ना, जब भी डेप्रीसिएशन या सेल है तो एसेट है वो आइटम। डेप्रीसिएशन हैपेंस ऑन फिक्स्ड एसेट। स्टॉक, प्रिंटिंग स्टेशनरी स्टॉक, पोस्टेज स्टॉक, स्टॉक इज ऑलवेज ऑन स्टॉक मतलब प्रीपेड, लास्ट ईयर प्रीपेड, दिस ईयर प्रीपेड। सो परचेज ऑफ क्रिकेट गुड्स आर एक्सपेंस। ओके, इट्स लाइक परचेज ऑफ मटेरियल, एक्सपेंस। समझ में आया ये बात? क्रिकेट गुड्स परचेज आर नॉट एसेट, एक्सपेंस। ओके, नो डेप्रीसिएशन, नो सेल। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स दिया हुआ है वहां। sundries are expense, investments are assets, tournament expense. Check, do you have any tournament fund? Yes. tournament fund है तो कहाँ जाएगा? fund will be your liability. expense उधर से ही माइनस। वन टाइम है, नॉन रिकरिंग है,
बैलेंस में अभी देखो 2 नहीं है 3 कैश, ओपनिंग में भी चेक करो 3 बैलेंस है, कैश, बैंक एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, दिख रहा है? तो 3 अकाउंट है उसके, कैश भी रखता है बैंक, ये तीनों का समरी है, कैश, बैंक, एफडी। तो तीनों किधर जाएंगे? कैश, बैंक, एफडी। एसेट और इस ईयर और ओपनिंग वाले कहाँ जाएंगे? लास्ट ईयर लास्ट ईयर एसेट। उसके बाजू में 6% भी दिया है, व्हाट डज दैट इंडिकेट? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हिडन एडजस्टमेंट है, विल कैलकुलेट, चेक, कंपेयर। ओके, हाँ हाँ। सर वो होमवर्क समय था, आप वो ड्रामा रिसीट्स का दिया था 1 लाख Income. रुपीज। तो सर तो फिर वो क्यों फंड सिर्फ लायबिलिटी में आता है, रिसीट्स फंड और सिर्फ वो लायबिलिटी, अच्छा okay. फंड सिर्फ लायबिलिटी, फंड। देन मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन 4,000 रुपए कहाँ जाएंगे? 4,000 इनकम। एक ही सब्सक्रिप्शन है, पुट इट अंडर इनकम। 600 रुपया जो दिया है ना, फिलहाल लीव इट ऑन हॉल्ट, आई डिस्कस इट, क्या दिया है उसका मतलब क्या बताता हूँ। फिलहाल 4,000 किधर जाएगा वो बताओ? 4,000 तो जाएगा तुम्हारा इनकम में। ये बात क्लियर हो गई सबको? एंट्रेंस फीस के बारे में पढ़ो, कुछ दिया है एंट्रेंस फीस के बारे में? is given, what do we assume? Income. Add to capital fund. Add to capital fund. Entrance fees add to capital fund. Admission fees income. Entrance fees add to capital fund and write a note. Donations के बारे में कुछ दिया है? इनकम Income. Donation के बारे में कुछ नहीं दिया है तो income. Interest on fixed deposit. Interest on fixed deposit किधर जाएगा? Income. Interest on fixed deposit is income. Tournament fund किधर जाएगा? तो liability. And sale of crockery was asset, you have sold it. Will you record that 200 anywhere? Will you record that 200 anywhere? No. 200 को circle करना है, उसके जगह what are we going to record? Book value you will subtract from crockery, and what is the profit है कि loss है? Profit of how much? 80 rupees. क्या करना है? Profit of 80 rupees income. Is that clear? Income. Got it? Coming to the adjustment, very important adjustment, जिसको ये आ गया उसको पूरा एनपीओ का ऑलमोस्ट ज्ञान प्राप्त हो गया, 80-90% चैप्टर डन। मंथली सैलरी इज ₹100. मंथली सैलरी इज ₹100 म्हणजे काय? 100 rupees is outstanding. 100 इज आउटस्टैंडिंग। 1100 हो गया साल का आपका, वो पेमेंट में दिया हुआ है, साल का 1200 हो गया, सॉरी 1100 पेमेंट में दिया तो 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग हो, बराबर है? एड टू सैलरी एंड लायबिलिटी, ये बात समझ में आई? मंथली सैलरी इज 100, मतलब 1200 होना चाहिए, 1100 पे किया है, 100 रुपया आउटस्टैंडिंग, एड टू सैलरी लायबिलिटी। वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टल स्टैम्प इज एज फॉर, व्हाट डू यू मीन बाय अनयूज्ड पोस्टल स्टैम्प? Opening and closing stock. Opening stock and closing stock. What are you supposed to do with opening stock? add to postage Add to postage and last year liability asset. liability बोला कल्याण, last year asset. Okay, add to postal stamp and last year asset. What about closing stock? Minus and current year Minus from asset. postal stamp and current year asset. फिर दिया है stock of cricket goods है, वो goods not equipment. Make that correction. Stock of cricket goods, opening and closing stock. What are we supposed to do with opening stock? Sir, same ही होगा ऊपर। Same ही होगा, add to expense and last year asset, and closing stock is less from expense and current year asset. Is that clear? उसके बाद आता है अरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, म्हणजे काय? अरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन म्हणजे काय? आउटस्टैंडिंग 5-6 का 660 रुपया दिया है अरियर्स। अब जाओ और ऊपर देखो सब्सक्रिप्शन, और उसके नीचे ब्रैकेट में देखो क्या इंफॉर्मेशन है, इंक्लूडिंग 600 फॉर द ईयर 06। अभी ऊपर 600 दिया है, नीचे 660 दिया है। लास्ट ईयर 660 होगा और करंट ईयर 660 आएगा। 60 rupees still in arrears. Still in arrears. पढ़ो सब लोग, पढ़ो ध्यान से। कितना दिया है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग?
लास्ट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग जोर से लास्ट ईयर का टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? 600 है कि 600 है? 660 तो ऊपर क्यों 600 दिया है? सिर्फ 600 ही मिला है और 60 मिलना बाकी है। That are still in arrears. अब मुझे बताओ, परफेक्ट, स्टिल इन अरियर्स है, परफेक्ट। अब मुझे बताओ लास्ट ईयर एसेट कितना जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? 660 660 रुपीज। इज दैट क्लियर? और फिर 600 रुपया क्या करोगे आप? ये सब सब्सक्रिप्शन में से माइनस करना है कि नहीं करना है? करना है क्योंकि वो 4000 के अंदर पड़ा हुआ है। उसको हटाने का है अपने को। 600 ही करोगे कि 660 माइनस करोगे? कितना माइनस? 600 600 माइनस क्यों करोगे? क्योंकि मिला ही 600 है, दिया हुआ है वहां पे इंक्लूडिंग 600। तो 60 रुपीज का क्या? बाकी 60 जो बच गया उसका क्या? करंट ईयर एसेट स्टिल इन अरियर्स। इज दैट क्लियर? स्टिल इन अरियर्स। तो बेसिकली वहां पे दो एडजस्टमेंट है, 600 और 60। 600 का दो इफेक्ट क्या होगा? लास्ट ईयर एसेट एंड लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। और 60 का दो इफेक्ट लास्ट ईयर एसेट एंड करंट ईयर एसेट। करंट ईयर एसेट में 660 दिखेगा ना फिर? करंट ईयर एसेट में 60 खाली 60। अच्छा, क्योंकि लास्ट ईयर 660 मिलना बाकी था, ये समझा? हाँ उसमें से 600 मिला है। हाँ रिसीट में दिख रहा है ना 4000 के अंदर पड़ा हुआ है ना? वो तो मिल चुका है। तो अभी भी कितना मिलना बाकी है? 60। Current year asset 60. So two effects of 600 are what? Less from subscription and last year asset. And 60 rupees का दो effect is last year asset and this year asset. मुझे एक बात बताओ, सपोज ऊपर वाले सब्सक्रिप्शन में ऐसा दिया होता, including 660 for 2006, including 660 rupees for 2006. तो फिर कुछ नहीं है still in arrears. मतलब स्टिल इन अरियर्स कुछ नहीं। 660 रुपए का दो इफेक्ट क्या होगा? 660 का दो इफेक्ट क्या होगा इन दैट? Last year asset and less from subscription. लास्ट ईयर एसेट एंड लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। आर यू गेटिंग दैट? और अगर ऊपर नीचे ऊपर दिया है 600, नीचे दिया होता आउटस्टैंडिंग ऑफ 56 is 1000, 660 की जगह 1000 दिया होता, तो क्या कर? 400 स्टिल इन अरियर्स हो जाता। तो लास्ट ईयर एसेट टोटल कितना था? 1000 और माइनस कितना करते सब्सक्रिप्शन? 600 और करंट ईयर एसेट कितना आता? 400। जितना रिसीव किया है उतना ही माइनस करना है। लॉजिक इस्तेमाल करो ना। जो प्रीवियस ईयर का रिसीव हुआ है वो ये साल का इनकम नहीं है, इसलिए उसको हटा दो। जो प्रीवियस ईयर का रिसीव हुआ है वो ये साल का इनकम नहीं है, उसको हटा दो, इसलिए वही माइनस करना है। गॉट इट? और जो पिछले साल मिलना बाकी था अभी तक मिला ही नहीं है, वो अभी भी मिलना बाकी है, वो सीधा चला जाएगा एसेट में, स्टिल इन अरियर्स। इज इट क्लियर? और नीचे एक और दिया है 67 का 800 रुपया करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। वो क्या करना है? Add to subscription and assets. Add to subscription and assets. हम लोग साथ में दिखा सकते हैं ना 60 प्लस 800 860 टोटल कॉलम। हाँ बट उधर ब्रेकअप करके दिखाना लास्ट ईयर करंट ईयर। सर 60 रुपीज वो कंटिन्यू हो रहा है ना 2005-06 से? 2005-06 से कंटिन्यू हो रहा है। यस, 5-6 में भी अरियर्स में था, 6-7 करंट ईयर में भी अरियर्स 60 रुपया लास्ट ईयर। सर 5-6 में भी अभी भी अरियर्स में है, तो 60 ऐड क्यों नहीं करते सब्सक्रिप्शन में? या ना 660 जो लिखा है लास्ट ईयर एसेट। नहीं ये साल सिर्फ नहीं, वो 60 वो 60 क्या 60 को ऐड क्यों नहीं करते ये साल? या करना है ये साल 60 ऐड होगा ना, स्टिल इन अरियर बोला तो बाबा। अच्छा ओके। तो करंट ईयर टोटल आउटस्टैंडिंग इज 860। ऐसा 800 करंट ईयर का ऐड टू सब्सक्रिप्शन एसेट, वो तो एसेट में जाएगा ही, मिलना बाकी है। लास्ट ईयर का भी 60 मिलना बाकी है ना, तो लास्ट ईयर एसेट एंड दिस ईयर एसेट जाएगा ना 60 करंट ईयर एसेट। तो करंट ईयर एसेट में दो आउटस्टैंडिंग आएगा, 800 रुपया और 60 रुपये, टोटल 860। दो आएगा 860। ओके, हिडन एडजस्टमेंट कर लो फटाफट। डिपॉजिट डी दिया हुआ है
FD 6%. What is the amount? 3,000. So how many months का interest will calculate interest on FD? How many months का will calculate interest on 12 महीना. अभी यहाँ पे तो फेस वैल्यू नहीं दिया है, तो मैं बुक वैल्यू पे कर रहा हूँ. आई एम अज्यूमिंग बुक वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू. 3,000 का 6% फॉर 12 मंथ कितना होता है? 180. Whether you have received any interest check. 90 rupees outstanding. Less interest received. कहाँ मिलेगा? रिसीट साइड पे. चेक करो रिसीट साइड पे कितना रिसीव किया आपने? 90. मतलब अभी भी कितना मिलना बाकी है? अभी भी कितना मिलना बाकी है? 90 rupees. 90 rupees is receivable. What are the two effects of 90 rupees? Current year outstanding interest. बोलो बोलो बोलो. इनकम एंड एसेट. इनकम में क्या करना है? ऐड. एंड इन्वेस्टमेंट्स में एफडी में ऐड. बराबर है. एफडी में ऐड और इंटरेस्ट में ऐड. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? कैलकुलेट, चेक, कंपेयर, हिडन एडजस्टमेंट. सर ये अपकीपिंग ऑफ लोन का मतलब क्या हुआ? अपकीपिंग मींस मेंटेनेंस. मेंटेनेंस इज एक्सपेंस. अभी मुझे बताओ डॉट्स. हाउ मेनी डॉट्स ऑन सैलरी? 1. How many dots on postal stamps? 2 dots. How many dots on cricket goods? Cricket goods. 2 dots. Opening, closing stock. How many dots on subscriptions? 2 dots. 2 dots. Last year minus and current year add. Subscription पे 2 ही डॉट आएगा. पोस्टिलियन अरियर वाला तो बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट जाएगा अलग अलग. सब्सक्रिप्शन 2 डॉट्स. क्रिकेट गुड्स 2 डॉट. पोस्टल स्टैम्प 2 डॉट. सैलरी 1 डॉट. क्रॉकरी हाउ मेनी डॉट्स? Dots. क्रॉकरी ऑल्सो 2 डॉट्स. सेल भी है, परचेज भी है. डेप्रिसिएशन नहीं है, सेल है और परचेज है. ठीक है. क्रॉकरी 2 डॉट्स. इन्वेस्टमेंट 1 डॉट. इन्वेस्टमेंट नहीं, सॉरी, Interest on fixed. फिक्स्ड डिपॉजिट. फिक्स्ड डिपॉजिट 1 डॉट एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1 डॉट. इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट अलग दिया हुआ है. फिक्स्ड डिपॉजिट 1 डॉट and interest on fixed deposit 1 dot. Fixed deposit 1 dot and interest on fixed deposit 1 dot. Okay. Let's begin. Crockery purchases. पहला ही आइटम है क्रॉकरी परचेज. 2 बैलेंस शीट का सम है, इधर ड्रॉ कर लो. दूसरी बैलेंस शीट भी. This balance sheet as on 31st March 06. तो पहले लास्ट ईयर से शुरू करना है आपको. क्रॉकरी कितने का क्रॉकरी था आप अज्यूम करना पड़ेगा आपको. कितने का अज्यूम करोगे? 120. 120. क्यों अज्यूम कर रहे हो? क्योंकि ये साल सेल हुआ है. ये सेल हवा में से तो नहीं आया होगा, लास्ट का होगा. तो लास्ट ईयर का ब्रिंग इट टू दिस ईयर एज 120. देन लेस sale of crockery. Less sale of crockery. इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? तो बुक वैल्यू. क्या सब्ट्रैक्ट करना है? बुक वैल्यू. कितना था बुक वैल्यू? 120. 120 का लाया, बेचा, प्लस परचेज ऑफ क्रॉकरी. परचेज ऑफ क्रॉकरी दैट इज 265. No depre, so outer column it will be 265. Outer column it will be 265. Got it? Okay, general assumption, sale and purchase happens on first date of the year. तो last year वाला ही बेचा और फिर current year वाला बाद में खरीदा. No depreciation. And go for maintenance. Maintenance is expense. To maintenance. This is your general maintenance, entire building, office, other areas. This is match expense. Match expense is also expense. 1324. कल का मैच देखा किसी ने?
Yes. वेटिंग लगा रहेगा ऐसा चब्बा ऊपर ओवर. Whose fault was that? Mayank Agarwal. Mayank Agarwal. Second fault. Umpire. Short run. Short run नहीं था. Short run. Mayank Agarwal. And third, there was one more fault at the super over. Did anyone find that? मयंक अग्रवाल को नहीं भेजा सुपर ओवर. वो इंजर्ड हो गया था बाद में. मयंक अग्रवाल को नहीं भेजा सर वो बाद में इंजर्ड हो गया था. लास्ट बॉल पे इंजर्ड हुआ था. हाँ कमेंट्री में वो वैसे भी नहीं आने वाला था सर, वो थक गया था बहुत. उसको क्रैम्प्स में बोला है सर. क्रैम्प्स था उसको. और अश्विन को तो अचानक ही हाथ में लग गया. क्या हो गया था? अश्विन को तो अचानक. सर अश्विन भी तो इंजर्ड हुआ. अश्विन भी इंजर्ड हो गया, हाथ में लगा उसको. बट एक ओवर तो खेल सकता था यार. 87 मार के कितना 80 से 60. सर उसको हाथ में फ्रैक्चर आ गया था. लास्ट बॉल पे बराबर के बीच में ही आ गया. मालूम पड़ेगा नेक्स्ट मैच अभी आ रहा है कि नहीं. हाथ में फ्रैक्चर है. मैच एक्सपेंस. ये वो बांग्लादेश वाला मैच किसी ने देखा था? वो धोनी ने रन आउट किया था लास्ट मिनट पे. ऐसा बॉलिंग पे था. हाँ पंड्या का बॉलिंग. फाइनल था वो. तो कप का सेमीफाइनल था. हाँ सेमीफाइनल. और कुछ सेमीफाइनल में आ रहा था सर. Match expenses are 1324. Salaries are अरे अमाउंट स्किप हो गया. मेंटेनेंस 682. मैच एक्सपेंस हाँ बराबर है. सैलरीज 1100 पे एक डॉट है. व्हाट इज द डॉट? प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज 100. 1200. एंड और एक वो ओपनिंग पार्ट में एक्चुअली वो सामने खड़ा था ना, वो नॉन स्ट्राइकर पे ऐसे ही रह गया. साउथ अफ्रीका. हाँ पृथ्वी शॉ ना. नहीं पृथ्वी शॉ नहीं. तो अबे वो साउथ अफ्रीका ने. अरे नॉन स्ट्राइकर एंड पे वो तीसरा विकेट किसका रह गया था पंजाब में? मैक्सवेल. सर वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है. ऑस्ट्रेलियन. सर वो कॉट आउट हुआ. अरे वो आउट ही नहीं हुआ. नॉन स्ट्राइकर पे रह गया. मैक्सवेल को स्टार्टिंग में भेजना चाहिए ना ओपनिंग एंड पे. सर वो ओपनर नहीं है. ओपनर तो वैसा वो अभी नहीं है, तो भी एक ओवर खेलने के लिए हिटर है. 5-6 बॉल खेलता है, बाद में आउट हो जाता है. 5 ही बॉल खेलने का था भाई सुपर ओवर. अनिल कुंबले नहीं सोचा आपके जैसे. छोड़ो ना सर. सब आपके थोड़ी जैसे. सर नेक्स्ट टाइम आपको पूछ के खेल लेंगे. सर नेक्स्ट टाइम से अनिल कुंबले की आपने लगाया था पैसा? लगता है सर, इसलिए पूछ रहे. ऑनलाइन ड्रीम 11 पे लगाया था. हाँ सर. I am hundreds of meters, kilometers away from betting, trading. मैं शेयर बाजार का ट्रेडिंग नहीं करता. वो तो लीगल है. तो यहाँ पे बेटिंग करेगा. फिर भी आपने मनी कंट्रोल है, शेयर बाजार का नहीं करते. फिर भी इन्वेस्टमेंट है मेरा पोर्टफोलियो भाई. ब्लू चिप्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. 100-150 करोड़ का है सर का. है तो नहीं, अभी नहीं है. Salaries plus outstanding salaries 1100 plus 100, that is 1200. Okay. Conveyance, that is also expense 82. No dot, so no adjustment. Upkeeping of lawn, that is expense 424. Postage stamps. How many dots on postage stamps? 2. 2 dots. Postage stamps. 2 postage stamps. 2 dots. What are the 2 dots? 105. Add opening stock.
और लेक्चर तो है। SK Somaya, yeah, you can go. Opening stock current year, that is last year का opening stock that you are supposed to add. Opening stock कितना है? 06 का 75, closing stock 07 का, that is 90 rupees. Okay, so this becomes 90, correct? Outer column 90, add opening less closing. Then purchase of cricket goods is again expense, not asset. Asset है तो डेप्री और सेल है तो asset है वो, ठीक है? Otherwise goods है, material है, stocks दिया तो हमेशा expense में ही जाएगा. So purchase of cricket goods, that is 972. Add opening stock last year का, that is 321, less closing stock, that is 280. So outer column, how much are we getting? 1013. 1013 now. Please check. Okay. तो दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक सेम फंड है. लास्ट ईयर प्रीपेड ऐड, करंट ईयर प्रीपेड सबट्रैक्ट. ओके. देन वी हैव सन्ड्रीज. So two sundries, that is expense 200, sundry expense. Investments, which investments are these, current year or last year? These investments are in the payment side. So current year में जाएगा 570 rupees. टूर्नामेंट एक्सपेंसेस क्या करना है? टूर्नामेंट एक्सपेंस फंड दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड. तो टूर्नामेंट फंड इन द लायबिलिटी 2000 क्या हो गया? डॉट है, इन्वेस्टमेंट पे नहीं है, एफडी पे है. एफडी का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इन्वेस्टमेंट पे नो डॉट. टूर्नामेंट फंड लिख दो 2000 इनर कॉलम लेस टूर्नामेंट एक्सपेंस, दैट इज कितना है? 1880. So outer column you will have 120. Cash in hand, तीन बैलेंस दिए हुए हैं क्लोजिंग में. कैश इन हैंड 220, कैश एट बैंक that is 2332, and FD फिक्स्ड डिपॉजिट 3000. उस पे डॉट है रिसीवेबल इंटरेस्ट. तो एड outstanding interest, that is 90 rupees. So 3090. And if you got that, instead of giving two balance, they have given us three. All three are maintaining together. Summary तीनों का दिया है. End में कैश बैंक एफडी, शुरू में कैश बैंक एफडी. तो एंड का क्लोजिंग बैलेंस, शुरू में ओपनिंग बैलेंस. बराबर है? So this makes it 3090. Now opening balance will go to last year's asset, all the three. Cash is 352, bank 2738, and FD is 3000. इस पे कोई डॉट नहीं है. लास्ट ईयर वाला तो क्लोजिंग था, ये साल का ओपनिंग बन के आएगा. Then we have member subscription. How many dots on member subscription? How many dots on member subscription? Member subscription, there are two dots. एकदम ध्यान से करना. 4000 rupees is received. उसमें less outstanding subscription of last year. कितना माइनस करना है 06 का बताओ? 600 सब्ट्रैक्ट करना है कि 660? 600. क्योंकि इंक्लूडेड सिर्फ 600 है, ठीक है. And add outstanding subscription of current year. Add outstanding subscription of current year, that is नीचे दिया हुआ है 800.
800 add, 600 subtract. Outer column will have 4,200. That is earned subscription. All of you got this? Subscription part. 60 rupees is still in arrears. That will go to current year asset. वो बाद में दिखा देंगे. Okay. Then we have entrance fees. Entrance fees क्या करना है? कुछ information नहीं दिया है तो add to capital fund. Add entrance fees to capital fund. मैं नोट दे रहा हूं तुमको, नोट लिख देना. डोनेशन के बारे में भी कुछ नहीं दिया. वेयर डू पुट डोनेशंस? डोनेशंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो डोनेशंस आर ऑलवेज इनकम. डोनेशन, ग्रांट, सब्सक्रिप्शन ऑलवेज इनकम. Then we have interest on fixed deposit. That is income 90. उस पे adjustment है outstanding interest. Outstanding interest of current year is 90, so that makes it 180. 180. Then we have tournament fund. We have already written it in liability. And then crockery का sale है. तो यहाँ पे देखो, सेल के वक्त हमने क्या किया था? बुक वैल्यू माइनस किया था. दिख रहा है? अब 120 का 200 में बेचा तो व्हाट इज दैट? 80 रुपीज प्रॉफिट. प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया तो कर लो अभी. बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉकरी. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉकरी 200 माइनस 120. 80 रुपीज का प्रॉफिट. देख लो यहां तक. कोई डाउट्स? रिसीट पेमेंट खत्म. जूम किया, देख लो. सर इधर जो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट दिया है तो वो ऐसा भी हो सकता है ना कि 90 रुपीज ही है. 90 रुपीज ही है तो परसेंटेज दिया हुआ है अपने को और डेट कुछ दिया नहीं है तो 12 महीने का कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना. हिडन एडजस्टमेंट बन जाता है वो. सर तो 180 मिला अपने को. 90 स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर में कितना दिखेगा? 660 ना पूरा? 660. यस यस 660. परफेक्ट. 600 मिला. 60 रुपीज करंट ईयर रिसीव. करंट ईयर के एसेट में 60 आएगा ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. हाँ 800 प्लस 800 करंट ईयर का 60 रुपया लास्ट ईयर 860. ऑलराइट. तो यहाँ तक कोई डाउट्स? बढ़े आगे. Coming to the adjustments now. Monthly salary is 100. What are the two effects? एक तो किया हमने add to salary. Second effect बाकी है तो दे दो liability. Outstanding salary liability 100 rupees. Okay. Two effects are done. Then value of unused postal stamp. That is opening and closing stock. Opening stock we have added. One effect added to postal stamp. Second effect is last year asset. Stock of postal stamp. Stock of postal stamp. Stock of postal stamp opening stock is 75. And second effect of closing stock, one effect is less from stamps and second effect is current year asset. Stock of postal stamp. Stock of postal stamp. That is 90 rupees. Opening last year asset, closing this year asset. Similar adjustment on cricket goods. Opening stock we added to expense. Last year prepaid tha. Second effect, last year asset, stock of cricket goods. Stock of cricket goods 321. And current year asset, closing stock. Stock of cricket goods. एक effect less कर दिया है हमने. दूसरा effect current year asset 280 rupees. 280 rupees. Okay. That's what you need to learn. जैसा कल वाले मैच में हुआ लास्ट मिनट. ओके. ग्रेवियस ऑफ द मिस्टेक्स हैपन ऑन द लास्ट मोमेंट. सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ परफेक्ट रहेगा, लास्ट मिनट में भोपाड़ा होता है. सो बी श्योर टिल द लास्ट मोमेंट इन राइटिंग द पेपर. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का. इजी हुआ तो भी लास्ट मिनट में कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो सकता है, पूरा कबाड़ा हो सकता है. सो बी अलर्ट. फिर मेंबर सब्सक्रिप्शन.
अभी यहाँ पर जाके मिस्टेक हो सकता है। मेंबर सब्सक्रिप्शन 660 रुपीज दिया है, लास्ट ईयर एसेट में कितना लिखूं बोलो मुझे? 660. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज 660. 600 प्लस 60 660. ये ब्रेकअप नहीं दिखा है तो भी चलेगा, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। 600 रुपया मिला है, ओके। 60 रुपया क्या किधर लिखा है? डिपॉजिट क्यों लिखा है लास्ट ईयर में? हाँ ना, ओपनिंग में दिख रहा तो है, 12 महीने से वापर रहे। देखो ओपनिंग बैलेंस, 3 ओपनिंग बैलेंस है और 3 क्लोजिंग बैलेंस है। वो फिक्स डिपॉजिट लास्ट ईयर से आ रहा है, दिखा? हाँ सर। देन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। करंट ईयर वैसे तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 07 का 800 रुपया, तो लिखना ही है। और लास्ट ईयर का भी ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 06 का 60 रुपया अभी भी मिलना बाकी है, तो 860 रुपीज। इज दैट क्लियर? 860 रुपीज। ओके, देन हिडन एडजस्टमेंट पे आ जाओ। ये होने के बाद चेक कर लेना, हिडन एडजस्टमेंट एक था, ओके। एफडी पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था, आई थिंक वी हैव गिवन बोथ द इफेक्ट। ऐड टू एफडी भी हो चुका है एंड ऐड टू इंटरेस्ट भी हो चुका है यहाँ पर। बोथ द इफेक्ट्स ऑफ हिडन एडजस्टमेंट आर गिवन। टेल मी द ओपनिंग कैपिटल फंड। 7266. 7266. Capital fund is 7266. Bring it to this year 7266. Total of income expenditure 5015. Surplus deficit 54 rupees. 54. Deficit excess of expense over income and less deficit is subtracted 7487. 7487. 7707. 7707. 7707. Is this clear? अभी नोट लिख देना ये समय नीचे. Write down a note. In the absence of any information, it is assumed that donations are revenue receipt, hence credited to income and expenditure account. In the absence of any information, it is assumed that donations are revenue receipt, hence credited to income and expenditure account. In the absence of any information, it is assumed that donations are revenue receipt, hence credited to income and expenditure account. सर एंट्रेंस फीस का नहीं आएगा इसमें? दे रहा हूँ. In the absence of any, second note, in the absence of any information, it is assumed that entrance fees are capital receipt, hence added to capital fund. In the absence of any information, it is assumed that entrance fees are capital receipts, hence added to capital fund. सर ये आप हम लोग के नॉलेज के लिए दे रहे हो कि बोर्ड्स में लिखना पड़ता है? बोर्ड्स में मैंने अभी तो बोला, आज तक कभी जरूरत नहीं पड़ा. सर एनपीओ हम लोग को ऑप्शन में नहीं, कंपलसरी. सर हैंस एडेड टू क्या बोला आपने? कैपिटल फंड, हेंस एडेड टू कैपिटल फंड. अगर आया तो लिखना पड़ेगा, ऐसा आया तो सपोर्टिव अजम्पशन लिख देने का. कभी कोई चीज का इन्फो नहीं दिया है, डोनेशन का नहीं दिया है, एंट्रेंस फीस का नहीं दिया है, तो ये नोट लिख देने का. इट इज अज्यूम्ड दैट डोनेशन is a revenue receipt, hence credited to income and expenditure account, and entrance fees is a capital receipt, hence added to capital fund.
अब I want you to take the last side of your book, या कोई इधर बीच में या कहीं पर भी यहाँ पे आप रेफर कर सको important point कर सको एनपीओ के लिए फर्स्ट पेज लास्ट पेज wherever you feel comfortable उधर लिखो या टेक्स्ट बुक में जहां पे आपको लिखना है लिख दो. In the absence of any information, the following items will be treated as income. In the absence of any information, the following items will be treated as incomes. In the absence of any information, the following items will be treated as incomes and credited to income and expenditure account. And credited to income and expenditure account. In the absence of any information, the following items will be treated as incomes and will be credited to income and expenditure account. And will be credited to income and expenditure account. Number 1, subscriptions. Number 1, subscriptions. Number 2, donations. Number 3, grants, grants, grants. Number 4, admission fees. Number 4, admission fees. Number 5, tuition fees. Number 5, tuition fees. Number 6, term fees. Term fees. Term fees. Number 7, receipts from tournament / prize / sports. Receipts from tournament / prize / sports. First. Okay, once again, subscription, grant, donation, admission fees, tuition fees, term fees, receipts from prize, sports, tournament, etc. Okay, ये सब चीजें इनकम में. और नीचे लिखो the following, in the absence of any information, the following items will be capitalized and added to capital fund. In the absence of any information, the following items will be capitalized and added to capital fund. In the absence of any information, the following items will be capitalized and added to capital fund. And added to capital fund. Number 1, life membership fees. Number 2, legacies. Number 1, life membership fees. Number 2, legacies. Number 3, entrance fees. Number 3, entrance fees. Number 3, entrance fees. उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखना any specified donation. Any specified donation. Any specified donation. एक लाइन छोड़ के अलग से any specified donation like donation for prizes, comma, donation for tournament, comma, donation for building fund. Example, donation for prizes, comma, donation for tournament, comma, donation for building fund, comma, donation for library. Donation for cricket, etc. Donation for prizes, sports, prizes, tournament, library, building, cricket, any donation, okay, will be written under a separate account on the liability side. Will be written under a separate account on the liability side. Will be written under a separate account on the liability side and will not be added to capital fund.
will be written under a separate account on the liability side and will not be added to capital fund because its purpose is specific. 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 They are also known as endowment funds. They are also known as endowment funds. They are also known as endowment funds. कोई कंफ्यूजन है? कौन सा चीज किधर जाएगा? बैठा दिमाग में बराबर से? यस ध्रुव, ऑल ऑफ यू गॉट इट? अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर नोट में लिखने का, ओके? जैसा मैंने बताया आपको, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, अगर कुछ इन्फो नहीं दिया है तो नोट में लिखो, अदरवाइज लिखने। सब्सक्रिप्शन के लिए कोई नोट की जरूरत नहीं है, सब्सक्रिप्शन हमेशा इनकम ही है, उसके लिए नोट की जरूरत नहीं है, ओके? डोनेशन, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, अगर कुछ नहीं दिया है तो इंफॉर्मेशन में दिखा देने का, ओके? नोट फॉर्म में। दैट्स इट, वी स्टॉप। होमवर्क आ जाएगा, सबमिट इट ऑन टाइम। टाइम योरसेल्फ 20 to 25 मिनट्स। अभी होगा तो बोर्ड में होगा, अभी नहीं तो बोर्ड में टाटा बाय बाय, ओके? सो कुछ डाउट है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय सर, बाय बाय। सर एक बार बैलेंस शीट दिखाओ ना, वो लास्ट ईयर। ये क्या नीचे तो है?